যদি কেউ এই হতশ্রী বিগত ভাগ্য লুপ্ত বুদ্ধি পরপদদলিত চির বুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রী কাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালোবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায় মনোবাক্যে দারিদ্র ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। স্বামীজি আহ্বান করছেন, আত্মনমক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। আমাদের জন্ম, কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ, জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর। নর জন্ম সার্থক করে চলে যা। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। স্বামীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সকল বীর নিজেদের জীবন সন্ন্যাসব্রতে সমর্পণ করেছেন, শ্রীমৎ স্বামী আর্যানন্দজি তাদের মধ্যে অন্যতম। পূজনীয় মহারাজ 1990 খ্রিস্টাব্দের পুনেতে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ বালক সেবা সংঘের মাধ্যমে ছোট ছোট বালকদের উন্নততর জীবনে উন্নীত হতে সহায়তা করতেন। বেলুর মঠের হেডকোয়ার্টার্সে ট্রেনিং সেন্টারে আসেন 1995। এখানে তিনি 2 বছর ছিলেন। এরপর 1997 থেকে 2007 পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল, পোরবন্দর, গুজরাটে সেবারত ছিলেন। এই সময় তিনি দুর্ভিক্ষে, ঝড়ে বিধ্বস্ত ও 2001 ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত নরনারায়ণের ত্রাণ সেবায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। 2007 আবার তিনি পুনে মঠে আসেন এবং বালক সংঘকে শক্তিশালী করেন। তার সাথে সাথে যুব সংঘেরও বহু তরুণকে উন্নততর চারিত্রিক জীবনের সহায়তা করেন। 2017 সাল থেকে তিনি উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে নিযুক্ত আছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তিনি বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে নানান স্কুলে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষক ও পুলিশের শিক্ষানবিশ শিবিরে বক্তৃতা দিয়েছেন। এমনকি অনেক জেল বা সংশোধনাগারে কয়েদিদেরকেও সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি বক্তব্য রেখেছেন। শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্ত মহলে তিনি স্বনামধন্য হয়ে আছেন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ ইত্যাদি পাঠ, আলোচনা ও বক্তব্যের জন্য। আমরা আজ ধন্য, আমরা পরম পূজনীয় মহারাজকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। মহারাজের ভাষণের পূর্বে একটি ঘোষণা: বক্তব্য চলাকালীন কেউ মাইক্রোফোন ও ভিডিও অন করবেন না। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বক্তব্য শেষে বক্তব্য বিষয় কেন্দ্রিক প্রশ্ন করতে পারেন আনমিউট করে। ঘোষণাটি শেষ হলো। এখন যোদ্ধা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে ভাষণ রাখছেন শ্রীমৎ স্বামী আর্যানন্দজি মহারাজ। মহারাজকে তার অমূল্য বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানাই। महाराज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट। ओके ओके Okay, can you hear me? Yes, yes, Maharaj, yes. Okay.
ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। आज का हमारा विषय है योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। तो शब्द आ रहा है योद्धा सन्यासी। सन्यासी तो है स्वामी जी, लेकिन उन्हें हम विशेषण लगा रहे योद्धा। और एक योद्धा हमारे आंखों के सामने आता है, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज। और जब उनका नाम हमारी आंखों के सामने आता है तो उनकी मां का उल्लेख किए बिना शिवाजी महाराज का चरित्र बताना लगभग नामुमकिन है। और वैसे ही हमारे आज के जो योद्धा है स्वामी विवेकानंद, तो उनकी परवरिश उनके मां ने की। उन्हें जो योद्धा बनाया है वो किस ढंग के योद्धा थे वो बाद में हम देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उनकी माता जी का भी एक लॉयंस शेयर है। इवन स्वामी जी का जब जन्म होना था तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी जी की मां ने बहुत तप किया, व्रत किए, उपवास किए, भगवान से प्रार्थना की। तो उसके फलस्वरूप स्वामी जी जैसी संतान उन्हें प्राप्त हुई है। तो यह सब लोगों के लिए एक सीख है कि सचमुच में स्वामी जी जैसा पुत्र किसी घर में हम चाहते हैं तो स्वामी जी की मां का भी चरित्र हमने पढ़ना चाहिए, और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसका भी हमने विचार करना चाहिए। दूसरा, स्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग हम देखते हैं कि एक बार उन्होंने एक व्याख्यान सुना, और उसमें जो व्याख्यान कहने वाले, जो कथा कहने वाले पंडित जी है, वो बोलते हैं कि हनुमान जी को केले की बाग बहुत अच्छी लगती है, तो केले के बाग में हनुमान जी का निवास रहता है। तो नरेन का मन इतना छोटा सा, नरेन छोटा सा बच्चा, में भी 7-8 साल का होगा, तो इतना सरल है उनका मन कि वो सचमुच में बाजू में एक केले की बाग है, वहां जाके बैठ गए। रात में कितनी देर तक, शायद माँ ढूंढ रही है कि अरे बिल्ले कहाँ गया है, और बड़ी देर तक वो राह देखी हनुमान जी की, नहीं आए हनुमान जी, तो अपने घर गए। माँ पूछते अरे बिले कहाँ गया था बेटा इतनी रात तक? तो बोलते माँ मैं तो हनुमान जी को खोजने के लिए केले के बगीचे में गया था, और वहां तो हनुमान जी आए ही नहीं। अब देखिए बात यह है ना, कितने सारे परिवार में अगर यही यही किस्सा अगर होता है, और उस घर का छोटा बच्चा अगर ऐसा कहता है कि मैं केले के बाग में गया था, तो उसकी माँ क्या कहेगी, उसके चाचा चाची बड़ा भाई वगैरह क्या कहेंगे? तो उस बच्चे की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो उस बच्चे की हम खिल्ली उड़ाएंगे, अरे क्या पागल हो, ऐसा मुझे रहता है क्या? लेकिन अगर सचमुच में एक योद्धा आपको बनाना है तो उसकी भावनाओं को भी हमको ठीक से समझना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी हमें समझनी चाहिए, और उसको ठीक ढंग से समझाना चाहिए। तो उनकी माँ ने देखिए कितना सुंदर उनको उत्तर दिया। उनकी माँ ने ये नहीं कहा कि अरे आजकल के जमाने में हनुमान जी नहीं दिखते, या बाबा जी ने वो कथा जो बोल रहे हो पंडित जी उन्होंने कुछ भी कहा, ऐसा जरा भी नहीं कहा। अदरवाइज फिर इनका कथा से ही विश्वास उठ जाता, वो पंडित जी के ऊपर से विश्वास उठ जाता। उनकी माँ ने सुंदर लॉजिक दिया कि अरे हनुमान जी तो राम के भक्त है ना, तुम तो राम की भी पूजा करते हो, तुम्हारे राम के तो भक्त है। हाँ हाँ, तो राम जी का कितना सारा काम रहता है, और हनुमान जी उनके काम के लिए निश्चय ही बाहर गए होंगे, इसलिए आज वो बगीचे में आए नहीं। अरे हाँ माँ ये बात सही है।
अदरवाइज देखिए फिर उनका हनुमान जी के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता। और इसलिए हम लोगों ने भी, हमारे आसपास जो लोग भी हैं, हमें उनकी साइकोलॉजी मालूम नहीं है, इसलिए भगवान को हमने प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान किसको कैसे हैंडल करना है, क्या बोलना है, मुझे मालूम नहीं है। हम जब बच्चों को भी हैंडल करते हैं, उनको सचमुच में योद्धा, उनको उनकी डिविनिटी मैनिफेस्ट करनी है, उनको अच्छा बनाना है हमें, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे नहीं समझता उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, प्लीज भगवान मुझे आप शक्ति दीजिए। क्योंकि बिली की माँ ने जो उत्तर दिया, हम में से कितने लोग देंगे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक बार और देखते हैं कि छोटा सा बिले ध्यान का खेल खेलता था। हमारे बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं? मैक्सिमम हम टीवी देखते हैं हमारे बच्चे, और क्यों देखते हैं? क्योंकि माताजी पिताजी देखते हैं। इससे सचमुच में हमारा बच्चा योद्धा बनेगा क्या? स्वामी विवेकानंद जैसा योद्धा बनेगा क्या? स्वामी जी ने पूरे विश्व को जीता है, तो ध्यान कर रहा है। और आप सब लोग को प्रसंग मालूम है कि सांप आता है और बिले ध्यान में मग्न है। छोटा सा बच्चा, शायद 8 साल का बच्चा होगा, उसके दोस्त लोग तो वहां से भाग गए और दूर से बिले बिले सांप सांप चिल्ला रहे, और उस बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं। तो ठीक है, इतना गहरा मेडिटेशन उनका बचपन से ही हो रहा है, तो हमारे बच्चों का नहीं होगा, इवन हमारा भी नहीं होता। कम से कम हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, इतना भी हमारे बच्चे देखेंगे तो बच्चे हमें इमिटेट करते हैं, हमारा अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं। तो घर में हमारा व्यवहार कैसा है, हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सब बच्चे वैसा ही अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। आज एक वॉलंटियर ने आज एक फोन किया और एक अंग्रेजी शब्द कुछ उन्होंने बोला अरे ये कौन सा अंग्रेजी शब्द है? तो बोले अरे ये शब्द तो बोले मेरे पिताजी बचपन से ही हम सुन रहे हैं। तो बोला अरे तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब बोला ये शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐसा तो नहीं है। तो वो भी हंस दिए, वॉलंटियर बहुत अच्छे हमारे भक्त है। तो इस बच्चे ने बचपन से अपने पिताजी से वो शब्द सुना है, हालांकि अर्थ उनका समझ में आ जाता है कि ये अर्थ है, बराबर। तो इसलिए हमने, माताजी पिताजी ने जो बड़े हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हमने किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। और एक बात देखते हैं हम कि स्वामी जी पेड़ के ऊपर उल्टा लटकते थे। तो एक दादाजी ने सोचा कि अरे बच्चे गिर जाएंगे तो इनको लग जाएगा, हाथ पैर टूट सकते हैं, इसलिए अच्छा उपाय क्या है, उनको लगा, उन दादाजी को बोलते अरे इस पेड़ के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता है, तो बोले आपको खा जाएगा, आप लोगों की गर्दन मरोड़ देगा वो, इसलिए इस पेड़ के ऊपर मत चढ़ना। ऐसा सुनते ही सब बच्चे तो भाग गए, और वो दादाजी भी मन में बड़े ही प्रसन्न होकर चले गए कि चलो यार अब फिर से बच्चे इस पेड़ पे आएंगे नहीं। और वो पेड़ पे चढ़ते खेलते तो शोर भी तो मचाते हैं, तो शायद दादाजी की दोपहर की नींद वगैरह भी खराब होती होंगी। तो नरेंद्र देखिए फिर से लटक रहा है, वहां पेड़ पे खेल रहा है, तो उसके बच्चे बोलते, उनके दोस्त लोग, अरे नरेंद्र तुमने सुना नहीं वो दादाजी क्या बोल रहे हैं, जो ब्रह्म राक्षस है वो हमारी गर्दन मरोड़ देगा। देखिए नरेंद्र छोटा सा है, शायद 10-12 साल का होगा, लेकिन उसके पास लॉजिक है, जो लॉजिक ना हमारे पास भी नहीं रहता बहुत बार। तो सचमुच में योद्धा बनना है तो किसी के भी ऊपर फट से विश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोग तो फट से, कोई एक लीडर ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो फट से हम उसमें बह जाते हैं। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका प्रयोग ही नहीं करते, और कभी प्रयोग करते तो गलत जगह करते हैं।
और हमारे बच्चों को भी हम बचपन से ही डराते हैं, चुप हो जा नहीं तो राक्षस आ जाएगा, भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ेगी तुमको। क्यों? तो ये बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये सब हम लोडिंग करते हैं और डर पैदा कर देते हैं हम, जो कि बहुत ही गलत है। आप आपके बच्चों को योद्धा भी बनाना चाहते हैं और वो बहुत डरे भी, तो ये कैसा हुआ, पूर्व और पश्चिम जैसा हो गया। तो ये हमारे जीवन में भी हमने सोचना चाहिए और हमारे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। और क्या लॉजिक था स्वामी जी का? स्वामी जी बोल रहे, छोटा सा बच्चा बोल रहा है अपने दोस्तों को, अरे यार कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करो, भगवान ने दी है ना। अरे इसके ऊपर अगर ब्रह्म राक्षस रहता तो कभी की हमारी गर्दन मरोड़ देता हो। तो दोस्त लोग भी सोचते, अरे यार बात तो सही है। तो बोले यार वो दादाजी तो बोल रहे, अरे वो दादाजी ने हमें ऐसा ही उल्लू बनाया है। तो ये पॉइंट पे हमने ख्याल में रखना चाहिए। दूसरा, देखिए बचपन से ही स्वामी जी किस मिट्टी के बने हुए थे, तो हमने भी खुद में, क्योंकि स्वामी जी जो योद्धा है ना, तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ स्वामी जी। तो हमारे जीवन में भी भले स्वामी जी, ही इज लाइक अ सन। एक गीत है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। ठीक है, आगे की पंक्तियां बहुत अच्छी है कि फूल मिले या अंगारे, तू सच की राहों पे चलता चल, मधुबन खुशबू देता। एनीवे, वो बहुत पुराना गीत है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस ये जो पंक्तियां है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, तो हम स्वामी जी जैसा सूरज नहीं बन पाएंगे। स्वामी जी बहुत बड़े योद्धा थे, तो हम उतने बड़े नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम दीपक तो बनना ही चाहिए हमको। तो इसलिए स्वामी जी के जीवन में क्या, और वो बचपन से ही दिखता है, एंड वी विल हैव टू मेडिटेट ऑन दोज इंसिडेंट्स। हमने नॉवेल जैसा स्वामी जी का लाइफ पढ़ा और हम भूल जाते हैं। अगर कोई बोलता है, आप लोग बोलते हैं या हम भी बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं, हाँ मैंने स्वामी जी के लाइफ पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? अरे गंभीरानंद जी महाराज का पढ़ा है, इनका पढ़ा है, अखिलानंद जी का पढ़ा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लाइफ पढ़ा है। ओके, आप बोलिए कि आपने अगर इतना पढ़ा है ना, तो 1 घंटे का लेक्चर हमारे यहाँ दीजिए। अरे बोले कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आपने तो इतना पढ़ा है ना, जस्ट आप बैठिए यहाँ और एक लेक्चर तैयार कीजिए ना कागज के ऊपर, बाद में आप बताइए। वेरी वेरी डाउटफुल कि हमको 1 घंटे का वो मटेरियल हम लिख पाएंगे कि नहीं पेज के ऊपर। क्यों होता है ऐसा? माने हमने नॉवेल जैसा पढ़ा और भूल गए हमने उसके ऊपर मेडिटेशन नहीं किया है, वो पूरा अंदर तक नहीं उतारा है हमने। स्वामी जी का जो जीवन है, वो जैसा उन्होंने किया और जो कुछ बातें नहीं की, जो नहीं करनी थी वो नहीं की, जो करनी चाहिए उन्होंने की, तो वो हमने हमारे जीवन में उतारने का प्रयास इतना सीरियसली नहीं किया, उन घटनाओं के ऊपर मेडिटेशन नहीं किया, और इसलिए वो हमारे अंदर तक ठीक से उतरा नहीं, हमें वो याद भी नहीं आता। वेरी सैड। अब ये स्वामी जी का एक उदाहरण देखिए कि स्वामी जी किला देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ पैदल पैदल जा रहे हैं। शायद 12 साल की उम्र होगी स्वामी जी की। अब बाहर निकले हैं 8, 10, 12 लोग, कितना एक्साइटमेंट रहता है, और उस एक्साइटमेंट में तेजी से चलते जा रहे हैं, और उसमें से एक लड़का पीछे थोड़ा सा बिछड़ गया बोलने से अच्छा है, वो जरा पीछे छूट जाता है, किसी को ख्याल तक नहीं आया उसका। और ये नरेन सोचता है, अरे ये मेरा दोस्त नहीं दिख रहा,
देखिए, नरेन सेल्फ सेंटर्ड नहीं था, अपना ही आनंद, अपने ही आनंद में नहीं था वो। ये हम बड़ों लोगों ने, हम स्वामी जी लोगों ने भी देखना है। हम लोग बहुत बार ना सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, और हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं। नहीं भी सिखाते तो सीख जाते हैं हमारा जीवन देख देख के। अपनी माँ का जीवन देख के, कि माँ फट से अपने पति को लेके अलग हो गई, सास ससुर को जरा भी नजदीक नहीं रखा, अपने घर में नहीं रखा। वो लड़की की बुआ आती है तो वो देखता है कि मेरी माँ की क्या रिएक्शन हो रही है। अरे यार, ये क्या कटकट आ गई, जितने जल्दी निकल जाएगी उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, आत्म केंद्रित हूं, खुद का ही स्वार्थ देख रही हूं। तो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे? हम डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ, और जो डिस्कशन भी करेंगे हम बच्चों के साथ, तो हमारे जीवन में हम जैसा व्यवहार करते हैं वही जब बोलेंगे तो ही बच्चों के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, उसका परिणाम होने वाला है, अन्यथा नहीं होगा। और यहाँ छोटा नरेन देखिए, बच्चे बाकी के दोस्त लोग आगे आगे जा रहे हैं, और मेरा दोस्त पीछे है, तो नरेन पीछे आ गया। देखता है ये लड़का बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बोले, अरे क्या हो गया, क्यों इतना धीरे चल रहे हो? अरे मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूं। क्या किया नरेन ने? वो क्या नाराज हुआ? अरे यार, तुमने तो मजाक किरकिरा कर दिया, चल ना यार, कुछ नहीं होता, ऐसा बोला उसने। हम बोलेंगे कुछ नहीं होता, चलो। क्यों? क्योंकि अभी हमारा हमारा मजाक किरकिरा होने वाला है। लेकिन नरेन ने ऐसा नहीं किया, एक गाड़ी रुकवाई, गाड़ी में उसको बिठाया, उसको घर लेके गया, छोटा सा लड़का। उसकी स्टेबिलिटी भी देखिए। हम हमारे जीवन में बहुत बार देखते हैं, हमारे जीवन में भी, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, ये मेरे जीवन में भी होता है कि थोड़ा कुछ संकट आ जाए तो गड़बड़ा जाते हैं हम। हमारी स्टेबिलिटी बहुत कम है, भगवान के ऊपर विश्वास कम है, सिचुएशन हैंडल करने की जो एक कला है वो हमने डेवलप नहीं की है ठीक से। घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहता। ये सब जो क्वालिटी है, एक महान योद्धा में एक क्वालिटी रहती है। तो हमें ये क्वालिटी आनी चाहिए, हमारे बच्चों में आनी चाहिए, भारत के हर युवक में ये क्वालिटी आनी चाहिए, और बच्चे में आनी चाहिए, तभी भारत हमारा ग्रेट बनने वाला है। तो यहाँ वो नरेन उसको घर छोड़ के आता है, फिर आता है, फिर अपने दोस्त लोगों के साथ ज्वाइन होता है। तो ये गुण, ये सुपर क्वालिटी कहाँ से आई? उनकी माँ ने भी उनको इसी ढंग से उनकी परवरिश की है, इसी ढंग से उन्हें समझाया, अपने बेटे को बड़ा किया है। और एक प्रसंग देखते हैं, सचमुच में इस एक एक प्रसंग के ऊपर भी हम अगर मेडिटेशन करते हैं ना, सोचते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, तो हमारे जीवन में कुछ अलग ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। स्वामी जी एक बार ऐसे ही दोस्तों के साथ, शायद इसी प्रसंग में है या और किसी दूसरे प्रसंग में, अपने दोस्तों के साथ कहीं गए नाव में बैठकर, और जब वापस आ रहे तो उसके एक दोस्त ने उल्टी कर दी, और नाव वाला बोलता है तुम साफ करो। तो ये छोटे छोटे बच्चे बोलते रहे हमको साफ करना नहीं आता, भले हम आपको कुछ पैसा दे देते, आप साफ करवा लीजिए। बोलते बिल्कुल नहीं, और वो नाव से उतरने नहीं दे रहा है। नाव किनारे तक वैसे पहुंच गई है, लेकिन वो उतरने नहीं दे रहा बच्चों को। हम अगर बड़े भी है ऐसे समय तो डर जाएंगे हम लोग। लेकिन ये जो योद्धा है ना, सचमुच में इसके ऊपर भी हमने मेडिटेशन करना चाहिए कि योद्धा, ये जो योद्धा बोलता है नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हमेशा लड़ूंगा और मुझे सोल्यूशन मिलेगा। अरे भगवान ने जब लॉक बनाया है तो उसकी चाबी भी बनाई है। नरेन वहां राह देख रहा है,
और उसको किनारे पे दो अंग्रेज सैनिक दिखते हैं। तो नरेंद्र तुरंत नाव में से कूदता है पानी में और दौड़ लगाता है। अब वो जो नाव वाले हैं वो थोड़ी नरेंद्र के पीछे दौड़ेंगे, वो अगर दौड़ेंगे तो बाकी लड़के भी उधर के भागने लगेंगे। बोलेंगे अरे चलो एक भाग गया तो भाग गया, बाकी लड़के तो है। तो वो जो दो सैनिक है उनके साथ एक छोटा सा बच्चा, वो उनको तो बंगाली थोड़ी आता होगा, तो नरेन टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाता है कि देखिए वहां ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी आप मदद कीजिए। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगता है। हम अभी भी पुलिस देख के हम अभी भी डरते हैं। और क्यों डरते हैं ना, बचपन से हमें डराया गया था, देखो पुलिस है पकड़ के लेके जाएगी। तो पुलिस वाले भी बोलेंगे अरे हमारी क्यों इतनी आप बेइज्जती करते हैं। तो खैर ये जो डर है उनको भी लग रहा है सैनिकों को कि अरे छोटा सा बच्चा हमें डरा नहीं है। उन्होंने बाकी बच्चों को भी देखा होगा ना कि जैसे सैनिक दिखते बच्चे भाग जाते होंगे, हम कल्पना कर सकते हैं। और वो भी अंग्रेज सैनिक है तब, अंग्रेजों का राज है तब। लेकिन वो अंग्रेज आते हैं, वो जो नाव वाला है उसको धमकाते हैं, सब बच्चों की वो सब बच्चों को उतारते हैं किनारे पे। तो ये जो है ना नेवर गिव अप, ये हमने स्वामी जी से, सभी योद्धा से हमने सीखना चाहिए। माने स्वामी जी ने जो जीता है, पूरे विश्व को जीता है, लोगों को जीता है, किससे जीता है स्वामी जी ने एक्चुअली? हम जो बोल रहे हैं योद्धा, तो कोई योद्धा है उसने तलवार से जीता है, एटम बॉम्ब से जीता है। स्वामी जी ने किससे जीता है? अपने स्वभाव से जीता है, अपने नॉलेज से जीता है, अपने अध्यात्म से जीता है, अपने हृदय से जीता है। कितने सारे पहलू, कितने सारे हथियार है स्वामी जी के पास। युद्ध जीतने के लिए हमें हथियारों की आवश्यकता रहती है, और स्वामी जी के पास एक से बढ़कर एक हथियार है। तो जैसे बोला ना कि स्वामी जी तो शाइनिंग सन है, ब्लेजिंग सन है। तो हम उतना बड़ा अगर सूर्य नहीं हो पाते हैं तो हम छोटा सा दीपक बनेंगे, किसी को उजाला दिखाएंगे, कोई और एक कैंडल हम जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। तो ये अगर दीपक बनना है तो देखेंगे कि स्वामी जी ने और क्या क्या किया इस योद्धा ने, और हम क्या कर सकते हैं, कितने प्रमाण में कर सकते हैं। भले 100% हम नहीं कर पाएंगे। छोटा सा विले एक बार एक मूर्ति लेके आ रहा है घर, और देखता है सडनली लोग चिल्ला रहे हैं अरे मर गया मर गया मर गया। और नरेंद्र दिखता है तो एक घोड़ा गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है, से आउट ऑफ कंट्रोल, और एक छोटा सा बच्चा बीच रास्ते में खड़ा है। अब हालांकि नरेंद्र भी तो बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है शायद, और एक बगल में मूर्ति दबा के है वो, और लोग दूर से चिल्ला ही रहे। और ये छोटे से बच्चे ने, 10-12 साल का ये बच्चा छठ से आगे होता है, उस लड़के को खींच के रथ के मार्ग से, घोड़ा गाड़ी के मार्ग से अलग निकालता है, दोनों गिर जाते हैं। उसकी मूर्ति भी गिर के टूट पड़ती है, टूट जाती है। देखिए छोटा सा बच्चा, शायद हमारे बच्चे ने ऐसा किया तो शायद कोई माताजी पिताजी उसको डांट देंगे, अक्कल नहीं किया तो उनको ऐसा करना पड़ता है क्या, उसकी माँ रोने लगेगी बहुत, तू मेरा अकेला ही बेटा है वगैरह वगैरह, छोड़ दीजिए। और यही जो बचपन का इंप्रेशन स्वामी जी का, और इसलिए स्वामी जी विथ फुल फोर्स स्वामी जी बोल सकते हैं बड़े होने के बाद भी, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive। जो दूसरे के लिए जीते वही सही मायने में जीते, बाकी लोग तो जिंदा होकर भी मरे हुए मुर्दे जैसे। हमने भी आत्मा परीक्षण करना चाहिए। मैं जब हमने बोल रहा हूं उसमें मैं भी हूं, हाँ याद रखना। मैं कुछ लेक्चर दे रहा हूं बहुत बड़ा हूं, मेरे जीवन में सब उतरा है ऐसा नहीं है। जस्ट हम सभी पति है, एक
पथ पर चल रहे हैं, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, इतना ही। आगे वाला कभी भी पीछे जा सकता है और पीछे वाला कभी भी आगे जा सकता है। हमारे प्रयासों के ऊपर निर्भर है, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। तो ये बचपन से ही देखते हैं स्वामी जी का, वो दूसरे के लिए जी रहे हैं, वो सेल्फिश नहीं है, सिर्फ अपने बारे में उन्होंने नहीं सोचा है, इवन अपने अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचते वो। जो हेल्पिंग नेचर है, कितने सारे प्रसंग है स्वामी जी के, और बचपन से ही है कि हम बोलेंगे, जैसे बहुत बार बोलते हैं ना, कोई लड़का अगर ज्वाइन करना चाहता है, साधु बनना चाहता है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग उसको क्या समझाते हैं, अरे बेटा ये क्या उम्र है तुम्हारी साधु बनने की, तो कब बनना चाहिए, अरे शादी वगैरह करो, संसार वगैरह करो और बाद में भगवान का नाम लो। तो ये जो सब बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा ना, उनको पूछिए कि आपने अध्यात्म को शुरू किया, और वो अगर बोलते कि 60 साल 65 साल में, तो उनको पूछिए कितना मन आपका लग रहा है भगवान में, भगवान में लग रहा है मन, या फिर इतने सालों तक जो भोग भोगे हैं वही आंखों के सामने आ रहे हैं। तो ये जो योद्धा है वो बड़ा होने के बाद तुरंत योद्धा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, लगभग नहीं के बराबर। तो हमारे बच्चों को बचपन से ही हमने उन्हें मोल्ड करना चाहिए। हमारे बच्चे क्या किताब पढ़ते हैं, हम क्या किताबें देते हैं बच्चों को, उनके साथ क्या डिस्कशन करते हैं। अगर बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम उनको उड़ा देते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनको भगा देते हैं, या उनके साथ डिस्कशन करते हैं। अगर हमें कोई उत्तर नहीं भी आता तो किसी स्वामी जी की मदद लीजिए। अब स्वामी जी का किस्सा हम देखते हैं, कॉलेज में है और उसका एक दोस्त बहुत गरीब है, उसको फीस भरनी है, लेकिन वो गरीब है, फीस नहीं भर पाता, तो उसे एग्जम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन वहां का जो क्लर्क है कोई एक नियम देकर बताता है कि उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी उसके पास जाते हैं, क्लर्क के पास, और बोलते हैं, सर वो बहुत गरीब आदमी है ना, उसे आप एग्जम्पशन दीजिए ना, उसको फीस उसकी माफ कर दीजिए। बोलते हैं, ज्यादा लेक्चरबाजी मत कर, किसको किसकी फीस माफ करनी है नहीं करनी है मुझे अच्छी तरह से आता है, तू मुझे मत सिखा। क्या स्वामी जी ने झगड़ा किया? तब तक स्वामी जी नहीं हुए थे, वो तो 18 साल का युवक वगैरह होगा। देखिए दिमाग ठंडा है, झगड़ा नहीं किया वहां, क्योंकि वो जो क्लार्क कह रहा है वो बराबर नियम के हिसाब से ही कह रहे हैं शायद, तो आपका झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त की सहायता तो करनी है ना। और स्वामी जी एक जगह बोलते हैं, बहुत अच्छा कोटेशन है स्वामी जी का, जब आपको कोई समस्या रहती है तो इस कोटेशन को याद करना चाहिए हम सभी लोगों ने। क्या बोलते हैं स्वामी जी? नेचर इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, नेचर इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, बट यू शुड नो वेयर टू नॉक and where to give a blow, and the strength of that blow will come through meditation. निसर्ग आपकी सभी समस्याओं का उत्तर बताने के लिए, समस्याओं का समाधान बताने के लिए तैयार है। rather that nature is eagerly waiting to give you solution. बस आप मेडिटेशन कीजिए, वो जो समस्या है उसके ऊपर विचार कीजिए, घबराइए मत, शांत दिमाग से विचार कीजिए और बोलिए कि यस मुझे इसका समाधान मिलेगा ही मिलेगा। और सचमुच में स्वामी जी सोच रहे हैं कि अरे अरे क्या किया जाए अभी, तो निसर्ग ने उन्हें बता दिया क्या करना चाहिए। क्या किया? शायद उसी दिन शाम को स्वामी जी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां अच्छे घर के लोग नहीं जाते, और विशेषतः स्वामी जी जैसा नरेश जैसा युवक
वहां जो चरस का अड्डा है तो वहां गया नरेन, एक पेड़ के पीछे छुप गया। अंधेरा होने को आ रहा है या जस्ट अंधेरा हो गया है, और ये जो क्लार्क है वो छुप के वो चरस के अड्डे पे पहुंच रहे, वहां से कुछ चरस लेंगे। स्वामी जी ने जाने दिया, और जैसे ही चरस लेके बाहर आया, स्वामी जी उसके सामने खड़े हो गए यमदूत जैसे। और जैसे ही नरेन को देखता है वो क्लार्क, तो उसके तो होश उड़ गए। बोले, अरे नरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो बताइए। तो बोलते, अरे नरेन किसी को बताना मत। बोले, सर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ हाँ मुझे समझ में आया, वो तुम्हारा दोस्त ना सवेरे का। यस सर, हाँ उसका हो जाएगा, कल उसको लेके आना। श्योर सर। अरे तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम्हारा मैं कुछ टाल सकता हूँ क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ठीक है, स्वामी जी ने लातों का भी ज्यादा प्रयोग नहीं किया, लेकिन दूसरी प्रकार से किया उन्होंने। तो इतना तो था कि बातों से तो वो भूत नहीं मान रहे थे। और अर्ली मॉर्निंग स्वामी जी अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, हरिदास नाम है उसका। और हरिदास को बोलते हैं, एक सुंदर गीत गा रहे हैं स्वामी जी भगवान के बारे में, कि भगवान की कृपा रूपी वायु मंद मंद बह रही है वगैरह वगैरह। उसका दोस्त बोलता है, क्या बात है इतना प्रसन्न हो? अरे यार मजे करो। बोले, वो फीस कम कर देगा और माफ कर देगा। अरे बोले, कल तो नहीं बोला। अरे लेकिन आज बोलेगा, चल तू मेरे साथ कॉलेज में। अब इस सब प्रसंग में स्वामी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अरे मैंने ना फिर उसको ऐसा धमकाया, मैंने ऐसा किया ना, वो पूरी जिंदगी पर याद रहेगा। ये मैं ये स्वामी जी मैं का प्रयोग कभी करते नहीं थे। और अगर कभी करते भी थे तो मैं माने आई एम दिस बॉडी एंड आई एम दिस माइंड, आई एम दिस ईगो, नेवर। हम कितना मैं, बच्चों के बारे में भी, बच्चा अगर थोड़ा ठीक से, अगर बड़ा हमारा बच्चा हो गया और उसने कुछ हमारे मन जैसा नहीं किया, तो हाँ फट से हम बोलते, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना पैसा तुम्हारे लिए मैंने खर्चा किया। तो क्या किया? तो आपके पिताजी ने भी तो किया होगा आपके लिए। खैर छोड़ दीजिए, एक इतना मैं है ना, आपने किया कि भगवान ने किया? वो पैसा भी भगवान ने दिया था, शरीर भी आपको भगवान ने दिया है, बुद्धि भगवान ने दी है, मन आपको अच्छा दिया है, वो भगवान ने दिया है, इसलिए कर पाए। अगर नहीं दिया होता भगवान ने ये सब, तो आप मेंटली रिटायर्ड होते तो क्या करते आप मुझे बताइए? कहां से आता आपके पास पैसा? किसको दे पाते? कुछ नहीं करते। और ये स्वामी जी का यहाँ देखिए, और इस ढंग से स्वामी जी ने कितने लोगों को जीता है। ये जो निरहंकारिता स्वामी जी की है कि मैंने यहाँ किया त्यों किया, स्वामी जी कभी नहीं बोलते थे। और जो बोल रहे कि हम स्वामी जी एक बहुत बड़े योद्धा है, तो किसी ने तलवार से जीता है, लेकिन स्वामी जी के पास अलग अलग शस्त्र थे। एक प्रसंग हम देखते हैं, स्वामी जी पढ़ाई के लिए अपनी नानी के यहाँ जाते थे, और नानी का घर एकांत में था, तो स्वामी जी अच्छी पढ़ाई करते थे वहां कॉन्सेंट्रेशन से। लेकिन स्वामी जी को मालूम नहीं कि वहां बहुत बार जब पढ़ाई के लिए जाते हैं तो बाजू के घर की एक लड़की, एक युवा लड़की स्वामी जी को देखती है बहुत बार। नरेन को कभी पता नहीं चला क्यों। बहुत बार तो हमें आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, सब हमें पता चलता है। तो हमारे में और स्वामी जी में क्या फर्क रहता है? क्योंकि हमारी वृत्ति बहिर्मुख रहती है, और नरेन 18 साल का लड़का होगा तब,
और उसकी वृत्ति अंतर्मुख थी, उसका मन अंतर्मुख था। इसलिए श्री राम कृष्ण बोलते हैं ना, जब नरेन को देखा उन्होंने तो क्या बोलते नरेन के बारे में, अरे कलकत्ते जैसे भोग प्रवण शहर में ये अंतर्मुखी लड़का, अंदर हृदय में देखने वाला लड़का, भगवान के साथ कनेक्शन रहने वाला लड़का, क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य। तो ये यहां भी हम देख रहे हैं, तरुण लड़का, युवा लड़का, एक युवक। खैर स्वामी जी अपने नानी के यहाँ गए, एक तंबोरे पे अच्छा गीत गाया और उनका मन उसके साथ ही भगवान से तल्लीन हो गया, एकाग्र हो गया। और कमरे में तब तक अंधेरा हो गया था, वो उन्होंने अपना तंबूरा रखा और धीरे से आंख खोलते हैं। आंख खोलने के बाद क्या देखते हो, उनके कमरे में एक युवती खड़ी है। अब अंधेरा है और वो युवती वहां खड़ी है, इसका क्या अर्थ होता है। और नरेंद्र कोई बच्चा नहीं था कि उसको इसका अर्थ नहीं समझ में आता कि उस समय जग पूरा पवित्र था। ऐसी भी बातें नहीं, ऐसी और कुछ किस्से नरेंद्र के जीवन में हो चुके हैं। उनके दोस्त लोग, स्वामी जी के ही दोस्त लोग, नरेंद्र के दोस्त लोग कुछ गलत जगह जाते थे, ये नरेंद्र को मालूम था। एक बार तो नरेंद्र को भी लेके गए हैं वहां। खैर स्वामी जी उठते हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि भाई स्वामी जी ने अभी नरेंद्र ने आंखें खोली, इस युवक ने आंखें खोली है, तो उस लड़की को लगेगा कि अरे अभी उसको मालूम हुआ कि मैं सिर्फ वो गाना सुनने के लिए आई थी और ये आंख मीट कर गाना गा रहे तब तक ही मैं खड़ी हूँ, अभी उन्होंने आंख खोल दे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। वो वहां खड़ी है, उसके मन में कुछ अलग है विचार। अर्थ स्पष्ट है। तो ये नरेंद्र, ये जो योद्धा है, हम बड़े बड़े योद्धाओं को देखते हैं, वो शेर हाथी को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ भयंकर योद्धाओं को हमने देखा है, ऐसे ही उन्होंने एक भी हथियार नहीं है फिर भी हाथी और शेर को कंट्रोल करते हैं। हमारे स्वामी जी उससे तनिक भी कम नहीं थे। और ये 18 साल का युवक उस लड़की के पास जाता है, शायद उस लड़की के मन में कुछ और विचार उठ रहा है, वो जाता है, उसे प्रणाम करता है, उसके चरण स्पर्श करता है और बोलता है, ये लड़का क्या ही संस्कार है। बोले माँ, देखिए उस लड़की को, जो तरुण युवा लड़की है उसको बोलते, माँ बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। और ऐसा सुनते ही वो लड़की फट से पलटकर वहां से निकल जाती है। सो दिस इज द पावर ऑफ कैरेक्टर, एंड दिस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजरस वेपन स्वामी जी हैड। ये जो कैरेक्टर नाम का वेपन स्वामी जी के पास था, उससे उन्होंने कितने लोगों को जीता है। सिर्फ कितने लोगों को ही नहीं, ये जो पूरे विश्व को जीता है, उसमें से एक वेपन स्वामी जी का है। अगर योद्धा के हिसाब से हम बोलना है तो ये उनका चारित्र। और उसके बाद देखिए, और ठीक है वो लड़की तो चली गई, इस स्वामी जी को इतना तो समझ में आया, नरेन को इतना समझ में आया, इसका मतलब ये लड़की मुझे इसके पहले भी बहुत बार देख चुकी है, मेरे ऊपर उसकी नजर है। मैंने विष की परीक्षा नहीं देखनी है, विष की परीक्षा मैंने नहीं देखनी चाहिए। वो अपने ऐसा बोलते हैं कि अपने नानी के यहाँ उसके बाद स्वामी जी फिर से कभी गए नहीं।
हम कितनी बार सावधान रखे। ये जो योद्धा है, सही योद्धा है, महान योद्धा है, वो हमेशा सावधान रहता है। और हिस्ट्री पढ़ के देखिए, जो भी योद्धा गाफिल रहा वो मारा गया। और यहाँ स्वामी जी कितने अलर्ट है कि मैं उस कमरे में कभी नहीं जाऊंगा, वहां कभी भी फिर से संकट आ सकता है। स्वामी जी को सचमुच में वो संकट लग रहा था। कितने युवकों को, युवतियों को लगेगा कि ये सचमुच में संकट है। या खुद के ऊपर बहुत अभिमान आएगा, अरे मैं किसी को अट्रैक्ट कर पाया हूं, या अट्रैक्ट कर पाए हो, या तुम ही अभी खींच के चले जा रहे हो। जरा अपने मन को प्रश्न पूछो, तुम जीते हो या तुम हार रहे हो। खुद का चीटिंग मत करो। सो दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ स्वामी जी। उसके बाद न सिर्फ कैरेक्टर, ये जो महान योद्धा थे, उन्होंने बोला ना उनके पास बहुत अलग अलग प्रकार के हथियार थे। और एक भयंकर वेपन स्वामी जी के पास क्या था? भयंकर और भयंकर अच्छा वेपन, स्पिरिचुअलिटी। सबसे असरदार वेपन स्वामी जी के पास यही था, यही शस्त्र था स्वामी जी के पास। और ये 18 साल का लड़का, हमारी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी अब सचमुच में ऐसा लगता है हम भगवान के लिए पागल है, व्याकुल है। और ये 18 साल का लड़का भगवान के लिए पागल है, व्याकुल हो रहा है, पागल जैसा हर किसी को पूछ रहा है, क्या आपने भगवान को देखा है? आप मुझे दिखा सकते हैं? मैंने देखा है, मैंने इट वॉज नॉट जस्ट क्यूरियसिटी। हम बहुत बार अपनी अक्ल दिखाने के लिए पूछते हैं, अच्छा आपने देखा है? अच्छा देखा है तो ऐसा, ऐसा है तो वैसा। जस्ट हमारी बुद्धि दिखाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी उसमें हमारा कुछ भी हमें लेना देना नहीं, उसको भगवान लाभ हुआ है या नहीं। लेकिन यहाँ नरेंद्र जब पूछ रहा है कि आपने क्या भगवान को देखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा तो मुझे भी बताइए, मुझे किसी भी हालत में भगवान चाहिए। जैसे घर में बहन की शादी बाकी है, हमारी उम्र बढ़ रही है, घर में पैसा नहीं, खाने के लिए नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? भाई कैसे भी करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, चाहे तो मुझे छोटी सी नौकरी दे दो यार। कितना व्याकुल होकर बोलते हैं, रोते रोते बोलते हैं। तो यही हालत नरेन की थी, इस युवक की थी। फर्क इतना था कि वो नौकरी के लिए और किसी पैसे के लिए और नहीं रो रहा था, वो भगवान के लिए रो रहा था। और कितने सारे लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, हाँ मैंने देखा है, और मैं जैसे बोलूंगा वैसे अगर तुम करोगे तो तुम्हें भी भगवान का दर्शन होगा। तुम्हें मैंने जितना देख, मैं तुमको जितना देख पाता हूं उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से उसे देख, तुम भी देख सकते हो। तो उनको लगा कि खुश कोई तो मिला है मुझे ऐसा बोलने वाला। और बाद में हम देखते हैं कि उनका जीवन बदल रहा है। वो श्री राम कृष्ण के पास आना जाना उनका चालू हो गया है। श्री राम कृष्ण उनको कैसा ट्रेन कर रहे हैं। सचमुच में अभी ये जो योद्धा है ना, और आप किसी भी योद्धा का जीवन देखिए, उसमें एक बात आपको ये भी दिखती है कि उसे किसी ने ट्रेन किया है। कोई भी योद्धा देखिए आप, शायद ही ऐसा कोई योद्धा होगा
कि जिसके गुरु ही नहीं है, या कोई काल्पनिक कहानी होगी तो। बाकी सब देखिए आप, पांडव देखिए, कौरव देखिए, इवन कर्ण देखिए, राम देखिए, कृष्ण देखिए, इन सब के गुरु थे। ये जब हमारे स्वामी विवेकानंद योद्धा है, तो उनको किसने ट्रेन किया, कैसे ट्रेन किया। और हमें भी अगर बड़ा योद्धा बनना है, अच्छा योद्धा बनना है, तो हमारे पास भी अच्छे गुरु चाहिए, अच्छा गाइड चाहिए, और उसके लिए हमारी पात्रता बढ़ानी चाहिए हमें। हम बहुत बार बोलते हैं, अरे यार उनके तो मजे थे, उन्हें श्री राम कृष्ण जैसे मिल गए। हाँ तो भैया वो भी स्वामी विवेकानंद जैसे पहले बनो, तुमको भी श्री राम कृष्ण मिलेंगे। श्री राम कृष्ण मिले हैं इतना ही हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्वामी विवेकानंद बनना चाहिए, नरेन बनना चाहिए, इसके ऊपर हमारी नजर ही नहीं जाती। बनो नरेन, अपने आप श्री राम कृष्ण आएंगे। तो श्री राम कृष्ण एक बार उनको बता रहे, पूछ रहे, अच्छा नरेन, कोई अगर तुम्हारी निंदा करता है तो क्या करोगे तुम। कि स्वामी जी माने, भले तब स्वामी जी नहीं बने थे, लेकिन ये जो नरेन है वो तो मैन से निकली हुई तलवार है। नरेन क्या बोलता है श्री रामकृष्ण को, अपने गुरुदेव को, महाशय मैं ऐसे समझूंगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं ऐसे समझूंगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तब कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ी हम ध्यान देते हैं। तो श्री रामकृष्ण हंसते हैं, आपको हंसते हैं, बोलते अरे अरे इतना इतना दूर मत जाओ। ठीक है, ये बात ठीक है कि उसके तरफ ख्याल नहीं देना चाहिए तुमने, वो बात ठीक है, लेकिन बिल्कुल वो कुत्ते वगैरह है ऐसा मत सोचो। उनमें भी तुम्हें भगवान देखना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है। ये हमारे लिए भी लागू पड़ता है। बहुत बार देखिए हम लोग अगर सही भी रहते हैं तो इसने वो बोला, उसने ये बोला, इसके लिए ही हम इतना रोते हैं, इतना उदास होते हैं। क्यों ऐसा होता है बोलिए। डिप्रेशन में जाते हैं हम लोग, और अगर कुछ कारण हम पता करते हैं तो बोलते हैं अरे उसने एक बार उसको बोल दिया था, उसका दिल टूट गया। इतना कमजोर दिल रहता है ना हमारा, उसका दिल टूट गया, तब से वो ना डिप्रेशन में चली गई, वो डिप्रेशन में चला गया। तो इतना कमजोर दिल लाया कहां से। उसे डेवलप क्यों नहीं किया, स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ाई। स्वामी जी जो कहते हैं ना, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। उसके ऊपर कंसंट्रेशन क्यों नहीं किया, मेडिटेशन क्यों नहीं किया। क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है वो सेंटेंस, और पढ़ा है तो उसके ऊपर चिंतन नहीं किया है, और चिंतन नहीं किया है तो हमारे जीवन में उतारने की हमने चेष्टा नहीं की है। इसलिए फिर कोई कुछ भी बोल देता है, हमारी गलती भी नहीं है। अरे इवन गलती भी है तो किसी ने कुछ बोला तो भी हाँ यार गलती हो गई, तुमने बोला ठीक है, अब आगे गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, बस हो गया मामला, वही कि खत्म, अब ज्यादा बकबक मत करना, माफी मांग लिया ना, हो गया। बहुत इश्यू की और एटीट्यूड, हम रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। डिप्रेशन क्या, गोलियां क्या, टैबलेट क्या रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उदास क्या रह रहे, और व्हाट ऑल नॉनसेंस। एक तो मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों रोऊंगा, और अगर गलती भी है तो मैंने कबूल कर ली है, गलती कल नहीं करूंगा, होगी एक गलती है, और फिर सिर्फ एक क्या, आगे भी और 50 गलतियां होगी। मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आई एम बाउंड टू कमिट सम मिस्टेक्स। हाँ बड़ी गलती नहीं होगी उसका मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना डांटेंगे और मैं मेरे ऊपर इतना परिणाम कर लूंगा, नेवर। तो ये दृष्टिकोण हमारा स्वामी जी का हमने भी हमारे जीवन में रखना चाहिए। और इसको ही यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं, बी एन
अनअफेक्टेड पर्सन। बहुत सुंदर वाक्य है, बी एन अनअफेक्टेड पर्सन। और उसको एक गीता जी में बोलते हैं, भगवत गीता में, कि अगर आपको भगवत कृपा चाहिए तो बहुत तपस्या करने की वगैरह आवश्यकता नहीं। क्या बोलते हैं? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः सच्चवे प्रिया। जो दूसरे को इरिटेट नहीं करता और जो दूसरे से इरिटेट नहीं होता वह मेरा प्रिय भक्त है। इसका मतलब ही मालूम है क्या? कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी जबरदस्त है, वो इरिटेट नहीं हो रहा है, वो हमेशा प्रसन्न है, गुलाब के फूल जैसा फ्रेश है, हिमालय जैसा ठंडा है, हिमालय जैसा मजबूत है। कितना भी उसके पास आसपास तूफान आए, हिमालय शांत रहता है। तो यही है अस्मानो द्विजते लोको, कि मैं इरिटेट नहीं होऊंगा और मैं दूसरे को इरिटेट भी नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते ठीक है, तुम मेरे प्रिय भक्त बन जाओगे। तो इतनी आसान बात है। तो ये और एक बात स्वामी जी की देख के 1-2 मिनट में प्रसंग खत्म करके हम रुक जाएंगे, जो कि 45 मिनट का समय दिया गया था, शायद समय हो गया है, 1-2 मिनट बाकी है सब। नरेन की एक बार श्री रामकृष्ण सब भक्तों के सामने स्तुति कर रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं केशव चंद्र सेन के साथ। केशव चंद्र सेन इतने प्रख्यात है, विख्यात है, और क्या बोलते हैं, जिस शक्ति की वजह से केशव चंद्र सेन इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, वही उस शक्ति का अगर हम कल्पना करते तो वैसी शक्ति, एक शक्ति सिर्फ केशव चंद्र सेन में है, एक कला है, तो नरेन में वह 18 कलाएं हैं, 18 प्रकार की शक्तियां हैं, 18 गुना शक्ति स्वामी जी के पास है, नरेन के पास है। तो ये हमारे साथ अगर कोई 18-19 साल 20 साल का युवक अगर ऐसा सुनता है, तो कोई एक जगह प्रसिद्ध आदमी है और उसकी तुलना इस युवक के साथ होती है, तो कितना उछलने लगेगा, गुब्बारे जैसा फूल जाएगा। लेकिन नरेन शांत है। फिर बोलते हैं कि इसमें नरेन में कुछ मोह अज्ञान नहीं है। अगर केशव चंद्र सेन मोमबत्ती जैसा है तो नरेन सूर्य जैसा है। अब इतनी जो स्तुति है ना, उसको पचा पाना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कोई भी बड़ा योद्धा टिक नहीं पाएगा। और ऐसे भी कितने सारे योद्धा देखे गए कि जिनको यश या उनकी स्तुति, इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जमीन से पैर उखड़ गए, हवा में चलने लगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के पैर हमेशा जमीन में रहे। और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि उनको ये नेम एंड फेम, ये स्तुति विषवत लगता था, विष्ठावत लगता था उनको। नहीं चाहिए मुझे, मेरा स्थल है हिमालय। हम स्टेटस में भी देख रहे हैं, आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट है तो स्वामी विवेकानंद का रोज एक प्रसंग हम हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस में रख रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और मुझे लगता है अभी जो समय है वो हो गया है, तो आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब लोग स्वामी जी जैसा इतना बड़ा योद्धा नहीं बन पाएंगे, सूर्य जैसा, तो कम से कम दीपक जैसा बने स्वामी जी की कृपा से। उतनी ही इच्छा, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। অসংখ্য ধন্যবাদ পূজনীয় মহারাজজিকে। আবারও মহারাজজিকে প্রণাম জানাই। এখন উপস্থিত যারা আছেন তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে
মহারাজের আলোচ্য বিষয়ে, তবে এক এক করে আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। ততক্ষণ একটি ঘোষণা। বি অ্যান্ড মেক স্বামীজির এই বাণীর আদর্শে সমাজে উন্নত চারিত্রিক মানুষ গঠনের কাজে ইয়ং সোলজার্স অফ স্বামীজি দীর্ঘদিন অনলাইনের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ স্বামীজিকে ভালোবেসে নিজেদের জীবনটাকে সুন্দর করার লক্ষ্যে ইয়ং সোলজার্স অফ স্বামীজি গ্রুপের সাথে যুক্ত আছেন। এখানে অনলাইন ডেইলি মর্নিং প্র্যাকটিস হয়। প্রতিদিন ভোর 5:15 থেকে 6:15 পর্যন্ত ক্লাস হয়। বৈদিক শান্তি মন্ত্র, সংঘগীতি, স্বদেশ মন্ত্র, মনঃসংযোগ, স্বামীজির বই পাঠ, শরীর চর্চা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা 6:15 থেকে সান্ধ্যা আরিত্রিক প্রার্থনা ও পাঠ হয়। এছাড়া নানা ভেরিয়াস ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়। স্পোকেন হিন্দি, সঙ্গীত, কম্পিউটার ও কবিতা শিক্ষার ক্লাস হয়ে থাকে। এছাড়া সাপ্তাহিক পাঠচক্র, অসতমা সদ্গময় ও তত্ত্বমসির মতো অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। নানা সামাজিক সেবামূলক কাজেও ইয়ং সোলজার্স অফ স্বামীজি গ্রুপ যুক্ত আছে। অনুরূপভাবে শারদায় নারী জাগরণ নামে মায়েদেরও একটি আলাদা গ্রুপ আছে। তাঁরাও নিত্যদিন এই সমস্ত কাজ করে চলেছেন। আর যদি কেউ নতুন থেকে থাকেন, আমাদের সাথে যুক্ত হতে চাইলে চ্যাট বক্সে নাম ও ফোন নাম্বার দিয়ে দিতে পারেন। ঘোষণাটি শেষ হলো। আজ মহারাজের বক্তব্য বিষয়ে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, তিনি আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। महाराज जी प्रणाम, चरण स्पर्श। आपका प्रवचन हम लोग तो मंत्र मुक्त होकर सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। स्वामी जी का एक कोट है ना, जो सरसों के दाने और पर्वत का जितना फर्क है। फिर से बोलिए, आवाज कम आ रही थोड़ी। अच्छा, सरसों के दाने और पर्वत का जितना फर्क है उतना ही गृही और सन्यासी का फर्क है। आई कुडंट गेट, आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। अभी सुन आवाज आ रहा है आपको? अभी क्लियर आवाज आ रहा है आपको? आवाज सिर्फ आ रही, लेकिन क्लियर नहीं आ रही। फिर से बोलने की चेष्टा कीजिए, मैं देखता हूँ। धीरे धीरे बोलिए। हाँ, स्वामी जी का एक कोट है ना, सरसों के दाने और पर्वत का जितना फर्क है उतना ही गृही और सन्यासी का फर्क है। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा। और तो ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने, हाँ, ठाकुर जी ने बोला है कि संसार में भी भोगमान लाभ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो स्वामी जी जो बोल रहे हैं कि एक सरसों का बीज और पहाड़ में जितना फर्क है, बराबर ना? हाँ, यही ना? यस महाराज जी। ठीक है। तो जो संसारी माने जिसने विवाह किया है वही संसारी नहीं है। जिसकी संसारी वृत्ति है वो सिर्फ भोगों के बारे में ही देख रहा है, खुद का स्वार्थ देख रहा है, भगवान के बारे में उसको जरा भी कुछ आकर्षण नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में स्वामी जी बोल रहे हैं कि वो जस्ट सरसों के बीज जैसा है। अन्यथा तो स्वामी जी के डिसाइपल भी कितने सारे गुरु है, श्री राम कृष्ण के डिसाइपल गुरु है और उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं बोल सकते हम कि गृहस्थी लोग को बिल्कुल ही गौन केस रहते, ऐसा नहीं है। तो ये जो वृत्ति है, गृहस्थ माने सिर्फ उसने विवाह किया है इसलिए वो गृहस्थ हो गया है, और उसको स्वामी जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
ऐसा जरा भी नहीं है। तो जिसकी ये वृत्ति है, हम उसको बोलते हैं ना कि अरे इसकी संसारी वृत्ति है, माने पूरा उसमें डूबा हुआ है, उसको भगवान के विषय में जरा भी आकर्षण नहीं है, विषयों के बारे में आकर्षण है, सेल्फिशनेस है, ग्रीडी है। तो फिर अगर ऐसा आदमी है तो उसको हम बोलते हैं घोर संसारी है। देखिए हम लोग भी यह शब्द प्रयोग करते हैं, वो घोर संसारी है। और कितने सारे हमारे गृहस्थ भक्त, सिर्फ हमारे नहीं बाहर के भी कितने सारे भक्त इतने अच्छे हैं। नागमाशय पढ़िए, नागमाशय का लाइफ सन्यासी से भी कितना बढ़कर उनका जीवन है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं है। ये जो वृत्ति है, वो थिंकिंग है, वो अगर गलत है, इवन वो जो सन्यासी है वो भी अगर उसकी संसारी वृत्ति है कि कितना पैसा मेरे पास अधिक आएगा, कितने मैं भोग भोगूंगा, कितना दिन रात खाऊंगा, नेम एंड फेम, तो हम बाहर भी देखते हैं कुछ दिन के बाद ऐसे सन्यासी जेल में रहते हैं। ओके। हाँ महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब माने संसार में कोई भक्त रहे, हाँ, संसार में रहकर भी हमें भगवान लाभ भगवान लाभ हो 101% सकता है। यस। ओके, अच्छा लगा। प्रणाम लीजिएगा। हाँ स्वामी जी, मेरे प्रणाम लीजिए। आजकल जो युवा है वो तो बहुत सारी प्रॉब्लम में है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिनको एबिलिटी है उनको जिनको एबिलिटी है एजुकेशन में और कोई काम में है, तो उनको अच्छी विचार में जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और सारी न्यूज मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया में हम तो रोज ही सभी बुरे चीज हम सब देख रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार है, लालच में लोगों ने खून खराबी कर रहा है। और जिन लोगों को शंका होना चाहिए उन लोगों को शंका तो नहीं है, मगर इनोसेंट आदमी जो रहा है उन सभी डर में जी रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सब क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। अगर कुछ लोगों ने तो आपका एक प्रश्न था, मैंने दो प्रश्न तो मुझे समझ में आए हैं। एक तो यूथ लोगों में एबिलिटी है लेकिन उन्हें वैसा स्कोप नहीं मिल रहा है, ये एक बराबर है। दूसरा प्रश्न था कि मीडिया में बहुत नेगेटिव आ रहा है, बराबर? बहुत सारी नेगेटिव। तो पहले आपका दूसरे प्रश्न, पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं कि मीडिया में अगर बहुत नेगेटिव आ रहा है तो आप मीडिया देखते क्यों है? नहीं समझिए ना, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि समाज में लालच के लिए, अर्थ के लिए इतना सारी भ्रष्टाचार और खून खराबी हो रहा है, हम सब कुछ नहीं कर पा रहा है। इस समस्या में कोई दिशा है क्या? इस संसार में नहीं, संसार नहीं है, ये जो समस्या है, अगर कुछ लोग इस अन्याय के विरुद्ध में खड़ी रहना चाहते हैं, वो तो नहीं पा रहा है ना। वो लोग खुद ही डर में जी रहा है। मेरे प्रश्न ये है, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या कोई दिशा है इससे कम आउट होने के लिए? हाँ, दो बातें हैं, दो तीन बातें हैं। अब रोग जितना बड़ा होगा उसका ट्रीटमेंट भी उतनी बहुत लंबी चलेगी।
ओके, ये एक पॉइंट हुआ। तो अभी आपके यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो मीडिया है, पॉलिटिक्स है वगैरह वगैरह, करप्शन जहां वहां है, तो वो एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला तो मैं खुद अच्छा बन रहा हूं क्या, वो एक बात। दूसरा पॉइंट, मैं पूरे विश्व को चेंज नहीं कर सकता, स्वामी विवेकानंद भी नहीं कर सके, राम नहीं कर सके और कृष्ण भी नहीं कर सके। तो मुझसे जितना पॉसिबल है, मैं एक छोटा दीपक बन के कुछ कैंडल्स को जलाऊंगा, वो कैंडल्स और कैंडल्स को जलाएंगी। इसके लिए मैं कुछ अच्छा पढ़ूंगा, मेरा जीवन अच्छा बनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद की किताबें मैं लोगों के पास पहुंचाऊंगा, स्वामी विवेकानंद के कुछ लैमिनेटेड फोटो पब्लिक प्लेस में लगाऊंगा, जहां से लोग देख के कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से कुछ अच्छा कलेक्टर बन सकता है। आपको अगर अच्छा लेक्चर देना आता है तो आप स्कूल में जाके बच्चों के पास ये लेक्चर दीजिए। तो इतना हम धीरे 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 कर सकते हैं। पूरा सिस्टम कब अच्छा होगा, नोबडी नोज, क्योंकि सब पॉलिटिक्स वगैरह हमारा एक ऐसे मोड़ पर है, और उन लोगों के हाथ में बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम या भारत का बहुत सारा उनके पास है। तो लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि बिल्कुल सीधी नहीं है। हमारी भी कभी कभी इन लोगों के साथ बात होती है, तो हम बताते हैं कि भाई ऐसा करना अच्छा है, या स्वामी जी का सिलेबस हम डालते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो वो बोलते हैं कि स्वामी जी आपकी बातें सभी सही है, लेकिन अगर हम स्वामी जी की किताबें अगर सिलेबस में डालते हैं तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, और हमारी किताब डालिए, हमारे इनकी किताब डालिए, हमारे इन संस्थापक की किताब डालिए, ऐसा करके सब क्यावास हो जाएगा। तो पूरा विश्व कब होगा, पूरा भारत कब ठीक होगा, नोबडी नोज। हम अच्छा बने, हमारे बच्चे अच्छे बने, और हमसे जितना हो सके और कुछ लोगों को मदद करके अच्छे विचार देके अच्छा बनाने की उन्हें हम चेष्टा करेंगे। और दूसरी बात, और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आपको भी और मुझे भी अगर कोई पूछे तो मुझे भी इसका उत्तर ठीक से मालूम नहीं। दैट इज ऑल्सो द वेरी वेरी सैड थिंग। वो ये है कि अभी जब से नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जिन्होंने सचमुच में ग्रास रूट पे काम किया है, सचमुच में जेन्युइनली काम किया। पहले बहुत सेलिब्रिटी को ये पद्म विभूषण मिलते थे, अभी लेकिन जो गरीबों के लिए काम कर रहे वगैरह उनको मिल रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई इस बार इतने लोगों को पद्म भूषण मिला, इतने लोगों को पद्म विभूषण मिला, और इन लोगों ने सब में विलेज में काम किया, किसी ने एनवायरमेंट के लिए काम किया वगैरह वगैरह, तो भाई इसका नाम आपको मालूम है क्या और इसकी क्या स्टोरी है बताइए। तो आपके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ पूछता है तो अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी वेरी सैड थिंग एंड शेमफुल कि मुझे इन लोगों के नाम नहीं मालूम है और इनकी स्टोरी नहीं मालूम है। बाकी पॉलिटिकल लोगों के हमें बहुत सारा मालूम है कि पॉलिटिकल में क्या चल रहा है, सेलिब्रिटी के बारे में क्या चल रहा है। तो अगर यही रवैया हमारा रहा तो भारत का ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में हम जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनके बारे में जितना हम थिंक कर सकते हैं, उतना हमारे मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी और हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। श्री राम कृष्ण के समय भी कलकत्ता पूरा प्योर नहीं था, फिर भी वो भगवान लाभ कर सके। स्वामी जी के दोस्त लोग वेश्याओं के पास वगैरह जाते थे, लेकिन उसमें भी स्वामी जी ऊपर उठ चुके और लोगों को भी ऊपर वो उठा सके। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर अस आल्सो। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर का भी समय भी समाप्त हो गया है। হ্যাঁ মহারাজ, এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন যুব সৈনিক সুবীর কুমার দাস মহাশয়। নমস্কার।
ঠাকুর মা স্বামীজি দিব্যত্রয়ী পাদপদ্মে আমার ভুলণ্ঠিত প্রণাম জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত শ্রদ্ধ মহারাজ পূজ্যপাদ আর্যানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন ভুবনেশ্বর উড়িষ্যা, আমরা ইয়ং সোলজার্স অফ স্বামীজির তরফ থেকে প্রণাম, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উনি যে সুন্দর সাবলীল ভাবে আমাদের স্বামীজির জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করে আমাদের যে আদর্শ শিক্ষা দিলেন, আমাদের স্বামীজির দিব্য জীবন আদর্শ শিক্ষিত হয়ে ছোট ছোট শিক্ষক দিতে হবে, যা থেকে আমাদের অন্তত একটা মোমবাতি হলেও চলতে পারে। উনি ওনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব সমাধান, এটা আমরা অনেক করি কিন্তু সেইভাবে দেখি না যে সমস্যার উপর যদি আমরা স্বামীজির কথা অনুযায়ী, স্বামীজির যে বলেছে প্রকৃতি আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান জানাতে তৈরি আছে, ব্যাস শুধু আমাদের সেই সমস্যার উপর একাগ্র হয়ে মনোনিবেশ করে ধ্যান করতে হবে, তাতেই সমস্যার কোনো না কোনো সমাধান হয়ে আসবে। এত সুন্দরভাবে মহারাজ এটা বললেন, আমরা ঋদ্ধ মহারাজকে আমরা আন্তরিক আবার প্রণাম, ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। আশা করব মহারাজ আগামীতে আমাদের আমন্ত্রণে আবার সাড়া দিয়ে আমাদের সবাইকে আবার আধ্যাত্ম পথে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকখানি দিশা দেখাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই এই আন্তর্জাল মাধ্যমে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের উপস্থিতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং আপনার আবার মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে আমি শেষ করব। এখন সমাপ্তি সঙ্গীত ও জয় দেবেন অয়ন চক্রবর্তী মহাশয়। অয়নদা শোনা যাচ্ছে না? সুমনদা আমি করে দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা স্বামীজির গান করুন আর জয় দিয়ে দিন। স্বামীজির গান করছি। হ্যাঁ, হুম। আজকের তত্ত্বমসিতে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই, মহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি তার তার দীর্ঘায়ুর জন্য এবং তিনি সুস্থ স্বাভাবিক যেন থাকেন, সুস্থ থাকেন সেজন্য প্রার্থনা করি। আমি স্বামীজির একটি বন্দনা পরিবেশন করছি। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর, চির গৈরিক ধারী, জয় বিবেকানন্দ, জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর, চির গৈরিক ধারী, জয় বিবেকানন্দ, জয় তরুণ যোগী শ্রীরাম কৃষ্ণ, ব্রত সহায়কারী, জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর, চির গৈরিক ধারী, জয় বিবেকানন্দ, যজ্ঞাহুতির হোম শিখা সম তুমি তেজস্বী, তাপস পরম
যজ্ঞাহুতির হোম শিখা সম তুমি তেজস্বী তাপস পরম ভারতরিন্দম নমো নমো বিশ্বমঠ বিহারী জয় বিবেকানন্দ জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চির গৈরিক ধারী জয় বিবেকানন্দ মদ গর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী মদ গর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি নব ভারতে আনিলে তুমি নববেদ মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ ভারতে আনিলে তুমি নববেদ মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি জয় বিবেকানন্দ জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চির গৈরিক ধারী জয় বিবেকানন্দ। ধন্যবাদ। আমি জয় দিচ্ছি। জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়, জয় মহামাই কি জয়, জয় ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কি জয়, জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয়। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। महाराज जी